Okay, Ji. So today we are starting lecture 7 of this week. So I remind you the previous lecture. So in previous lecture we have studied the non-homogeneous differential equation. In non-homogeneous differential equation, we particular solution by using the method of undetermined coefficient method, if you remember. So in previous lecture we have studied how to find yp using the method of undetermined coefficient method. So in this undetermined coefficient method, we actually the first step is select this y select yp. So first step is select yp, and then in the second step you update this yp. Second step you updated this yp, and in the third step you actually find the coefficients, update. In the third step you find the coefficient of yp, coefficient of yp. This is the procedure for undetermined coefficient method. But we have studied that the every non-homogeneous term which exists at the right hand side, that is equal to gx, if gx in the form of constant function, or it is in the form of polynomial, or it is in the form of exponential, or it is trigonometric, sine or cos, or it is the combination of these functions. So we can deal with this method. Otherwise, if at the right hand side there is log x, sine inverse x, e power sine x, e power x square, tangent of x. So we are not, there are many functions. Using this method, we cannot able to find the solution, that is the particular solution. So we are moving towards a next method, which is known as the the method of variation of parameter. This is the method of variation of parameter, which we have studied in this class. So the method of variation of parameter is, the domain of this method is large as compared to the undetermined coefficient method. And this method, if we have at the right hand side, if there is tangent x, sine inverse x, log x, e power sine x, if there is any function, you can deal with that function and you can find the particular solution by using the method of variation of parameter. So this method is method of variation of parameter is more general method to solve the non-homogeneous linear differential equation. इस बात का समझ आ रहा है ना? अभी तक मेथड हमने स्टार्ट नहीं किया, लेकिन हम थोड़ा सा उसके बैकग्राउंड के बारे में पढ़ रहे हैं. दिस मेथड इज मोर जनरल मेथड टू सॉल्व द नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. This method can be applied to differential equations where the method of undetermined coefficient fail. हम उन differential equation को भी solve कर सकते हैं जहाँ पे undetermined coefficient fail हो जाए particular solution find करने में. So you are able to use this method. So this method is not limited to the input functions that are combination of 4 types of functions: constant, polynomial, exponential, trigonometric, sine or cos. So actually this method is not only limited to these functions. If at the right hand side there are any other function instead of these 4 type of functions, so you are able to find yp by using the method of variation of parameter. ये clear है ये point जी? जी सर. जी सर. Okay जी. So it is applicable also to differential equation with variable coefficient. If the coefficient, so previous हमने पढ़ा था, if the coefficient are constant and at the right hand side there are specific function, so you can use the undetermined coefficient method. But here if the coefficient are variable, you can also use this method of variation of parameter. However, one point note करें इसमें से. However,
The particular integral is only possible in this method if the associated homogeneous equation can be solved. What is it? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि पार्टिकुलर सॉल्यूशन इस मेथड में तब आप फाइंड कर सकते हैं जब उसके करस्पॉन्डिंग होमोजीनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन आप फाइंड कर सकें। अगर होमोजीनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड नहीं हो रहा, देन यू आर नॉट एबल टू फाइंड वाई पी। सो होमोजीनियस का सॉल्यूशन तो आप उस पे भी फाइंड करते थे, याद है? वाई सी तो फाइंड कर देते वहां पे। जी सर। अगर वाई सी फाइंड हो रहा है, देन यू आर एबल टू फाइंड वाई पी। इस पॉइंट का आगे आपको पता चल जाएगा कि क्यों वाई सी और वाई पी एक दूसरे के साथ लिंक हो रहे हैं। इफ यू कैन फाइंड वाई सी, so you are able to find yp. So this is the point in this method. If you can find yc, you are able to find yp. Otherwise you are not able to find yp if yc is not calculated. So what is the procedure for this method? So procedure थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। This one is the procedure। थोड़ा सा आप और से इसको सुन ले। This one, I'm first writing the this is y dash plus px into y. This is equal to f of x. What is this? What is this? This is a first order non-homogeneous differential equation. This is first order non-homogeneous differential equation. And what is this? Y dash plus px into y. This is equal to 0. So this is first order homogeneous differential equation. Now this is homogeneous differential equation, first order. So you can write this first order homogeneous differential equation in this form, that is dy by dx equal to minus px into y. You can write this in this form. This is px into y. Yes. So you can also write this in the form of, this is a first order differential equation, and you can easily solve this differential equation. So this will be minus px into dx. So it will come in सर this. राइट हैंड साइड पे वो एफ एफ एक्स था सर, वो कहाँ पर चले गए सर? वो हमने जीरो किया, होमोजीनियस में सॉल्व कर रहा हूँ। अच्छा, so if you integrate it, so you will get log of y. This is equal to, because we didn't know about the function p of x, जब p of x होगा उस टाइम पे हम इंटीग्रेट कर लेंगे। सो फिलहाल हम सिर्फ इंटीग्रल का साइन यूज कर रहे हैं। दिस इज px. Instead of c log of integral, I am writing here log of c1 या log of c, बिकॉज मैंने इसको काफ़ी डिटेल से फर्स्ट क्लासेस में पढ़ाया था। सो अगर log की तादाद बढ़ जाए, सो यू राइट द कांस्टेंट इज log of c. So this is, you can write if a function is not in the form of log, so you can write it in the form of log of e power this function. ये तो पता है ना, plus of log of c1. So this become log of c1. So you can also write it log of y. This is equal to what? This is equal to log of c1 e power minus p into dx. px into dx or p into dx. So if you take nd log, you will get y is equal to, this is equal to c1 e power minus p into d of x. यहां तक क्लियर है?
जी सर। Okay. So if you take this is equal to y is equal to c1. If you give this is y1, this is y1, this is y1 suppose. So it become y is equal to c1 y1. If this is y1, so this become y is equal to c1 y1. So what is this? This is actually called yc. This is not y. This is yc because actually we are solving the homogeneous part. ये clear है? जी सर। Okay. So now let according to this method अब गौर से ये पॉइंट सुन ले. Let yp is equal to according to this method this is equal to u1 y1. So in this method only replace the constant of integral या the arbitrary constant involved in yc by u1 by an unknown function u1. ये बात समझ में आई? According to undetermined, the method of variation of parameter, if you are taking yp, so look into yc and replace the value of constant by unknown function u1. आगे मैं प्रोसीजर बताऊंगा, फिलहाल आप ये करें कि yc में जो कांस्टेंट इन्वॉल्व होते हैं वो कभी 2 होंगे, कभी 3 होंगे, कभी 1 होगा. So if the differential equation is of first order, so there will be one constant. If the differential equation is of second order, so there will be 2 constants. So in yp replace only these constant which is involved in yc by u1. तो इसलिए तो वो पॉइंट भी बता रहा था कि आप yp को तब फाइंड कर सकते हैं when you are able to find yc, because in yc we are actually replacing the constant of integral by unknown function u1. यहां तक पॉइंट क्लियर हुआ? जी सर। Okay. Now how to find this u1? Now the question is this one. How to find this u1? If you are able to find this u1, so y1 is given. Y1 is given in yc. This is your y1. So multiply this y1 with this u1, you will get yp. So how to find u1? So for finding u1, you differentiate this yp. So if you differentiate this yp, so you will get y dash p, which is equal to u1 y1 dash using product rule plus u1 dash into y1. So if you replace this value of yp and y dash p and what in the given equation 1, if you put these values in equation 1, so you will obtain u1 y1 dash plus u1 dash y1 and plus py1. So py means pu1 y1. This become p because we are replacing y by yp. So this will become pu1 y1 equal to f of x. This is equal to f of x. So सर ये वाला स्टेप थोड़ा रिपीट कर लीजिए। मैंने सिर्फ y की वैल्यू की जगह yp की वैल्यू रिप्लेस की और y डैश की जगह y डैश p की वैल्यू रिप्लेस की. ठीक है जी, ये दोनों वैल्यूज इक्वेशन 1 में पुट करें, so you will get this. Okay जी, if you take common u1 from this term and this term, so it will become u1. This will become y1 dash plus py1 plus u1 dash y1. This is equal to f of x. ये बन जाएगा. यहां तक क्लियर है? यस सर। Okay जी.
दिस इज इक्वल टू जीरो एक्चुअली, दिस टर्म। क्यों? ये क्यों जीरो होगा? ये देखें, डिफरेंशियल। हाँ, ये इक्वेशन टू जो है, इक्वेशन टू और ये सेम दिखाई नहीं दे रहे। सिर्फ फर्क ये है कि y की जगह वहां पे, यहाँ पे y1 है। बाकी तो ये दोनों इक्वेशन सेम है। इक्वेशन टू को देख ले, इक्वेशन टू इज सेम एज दिस वन। सेम है ना? नहीं सर, जी किस सर। तरह नहीं समझी इसको। इक्वेशन टू क्या है? y डैश प्लस p इंटू वाई इक्वल टू जीरो। तो अगर इक्वेशन टू में हम y की जगह y1 रिप्लेस करें तो ये y1 डैश प्लस p y1 नहीं बनेगा। जी बनेगा सर। अच्छा जी, अब y1 क्या है? y1 क्या होता है? y1 एक्चुअली इस इक्वेशन टू का सॉल्यूशन होता है ना। अगर इस फंक्शन को हाँ जो बिल्कुल मैं, सर। हाँ, अगर y1 इसका सॉल्यूशन है तो y की जगह अगर y1 रिप्लेस करेंगे तो इसने जीरो देना है, सो इट बिकम जीरो। क्लियर हुआ? हमेशा नोट करें, हमेशा नोट करें कि YC में जो C1 Y1 होता है तो ये Y1 उसका सॉल्यूशन होगा। YC में अगर C1 Y1 प्लस C2 Y2 हो, सो Y1 और Y2 दोनों अलग अलग उसके सॉल्यूशंस होंगे। अगर YC C1 Y1 प्लस C2 Y2 प्लस C3 Y3 हो तो Y1 Y2 Y3 तीनों उसके सॉल्यूशंस होंगे। क्लियर हुआ? बिल्कुल सर। अच्छा जी, तो मुझे मिल जाएगा वाई यू वन डैश वाई वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। यहाँ तक तो मैं आ गया ना? ये मैं क्यों कर रहा था? मैं यू वन फाइंड करने के लिए कर रहा हूँ ना। सो यू वन डैश क्या बनेगा? दिस इज एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई व्हाट? डिवाइडेड बाई वाई वन। ये बन जाएगा। जी सर। जी सर। What is u1? u1 is the integral of f of x divided by what? Divided by y1. So f of x means what? f of x means what? चलिए बता दे। f of x means the right hand side function. f of x means this function. YP। Yes, this function. यहाँ पे e पावर एक्स स्क्वायर भी हो सकता है, यहाँ पे log x भी हो सकता है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। सो f of x को उस होमोजीनियस पार्ट वाले सॉल्यूशन पे डिवाइड करें, यू विल गेट y1, सॉरी u1. So if you find u1, so put it in the yp here, so you will get yp. Clear हुआ जी? जी जी सर, हो गया। अच्छा जी, आप यहां से जब u1 फाइंड हो जाए तो आप यहाँ पे पुट करें yp u1 y1 के इक्वल था ना। सो u1 तो आपके पास मिल गया, ये फार्मूला है उसका। सो उसको मल्टीप्लाई करें y1 के साथ, y1 तो आ चुका होगा इन yc। सो यू मल्टीप्लाई इट एंड यू विल गेट yp। अब देखिए, आपने, ये तो क्लियर हुआ।
अच्छा जी, अब अगर हम सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ले ले, डबल वाई डबल डैश प्लस पी एक्स इंटू वाई डैश प्लस क्यू ऑफ एक्स इंटू वाई, q of x into y, this is equal to f of x. Now what is this? This is second order non-homogeneous differential equation. This is equation number 1. What is this? Y double dash plus px into y dash plus px into y dash plus q of x into y, and this is equal to 0. This is second order homogeneous equation. ठीक है जी। अब मुझे कौन बता सकता है कि YC क्या होगा? इस होमोजीनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा? C1Y1 प्लस C2Y2 नहीं होगा? बिल्कुल सर। ओके जी, C1Y1 प्लस C2Y2 होगा। फर्स्ट ऑर्डर का C1Y1 होता है, इसका C2Y2 होगा। अब मुझे आप बता दें अकॉर्डिंग टू दिस मेथड मैं YP क्या ले लूँ? मैं YP को U1Y1 ले सकता हूँ प्लस U2Y2। मैं अननोन कांस्टेंट को, मैं कांस्टेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स को रिप्लेस कर लूंगा YP में U1 बाई U2 में। ठीक है जी। जिस तरह हमने वहां पे C1Y1 को U1Y1 में रिप्लेस किया था, एंड सेकंड ऑर्डर you will replace C1 by U1 and C2 by U2. If there is C3Y3, so replace it by U3Y3. क्लियर हुआ? नाउ अगेन वही प्रोसेस हम कर रहे हैं, इसको आप डिफरेंशिएट करें। सो यू विल गेट टू U1 डैश या U1Y1 डैश, दिस विल बिकम प्लस, this is U1 dash Y1 plus this will become U2 Y2 dash plus this is U2 dash, this is Y2। यहां तक क्लियर है? जी सर। जी सर। अच्छा जी, अब थोड़ा सा मैं इस पॉइंट को एक्सप्लेन कर लूँ, दिस वन एंड दिस वन। मैं लेट कर रहा हूँ, लेट दिस U1 डैश Y1 प्लस U2 डैश Y2, दिस इज इक्वल टू 0। लेट दिस इज इक्वल टू 0। अब मैंने उन दोनों टर्म्स का एडिशन 0 लिया जिसमें U1 और U2 का डेरिवेटिव इन्वॉल्व है, मैंने क्यों 0 लिया? इससे पहले जब हम फर्स्ट ऑर्डर सॉल्व कर रहे थे तो हमने इस तरह का कोई एक्सप्रेशन नहीं लिया था, डायरेक्ट हमने C1Y1 था तो हमने YP को U1Y1 लिया, उसको डिफरेंशिएट किया और गिवन इक्वेशन में पुट किया और आपको U1 मिल गया। इस तरह था ना? जी सर। अच्छा जी, लेकिन यहाँ पे हमने जब YP लिया तो उसको जब डिफरेंशिएट किया तो मैं कह रहा हूँ कि इन दोनों टर्म्स का जो मैंने सर्कल किए हैं, लेट द एडिशन ऑफ दीज टू टर्म्स इज 0। क्यों? एक बात नोट करें, अब YP में आपके पास कितने इक्वेशन अननोन्स हैं? U1 एंड U2, दो अननोन्स हैं, दो अननोन है ना? YP में दो अननोन हैं। अगर YP में दो अननोन हैं तो जब आप YP का Y डैश पी लेंगे और Y डबल डैश पी लेंगे और इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो आपको कितने इक्वेशंस मिल जाएंगे? एक इक्वेशन मिलेगा ना? जब आप YP, Y डैश पी, Y डबल डैश पी की वैल्यूज को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो इक्वेशन 1 से एक ही इक्वेशन मिलेगा ना? जी सर। अच्छा जी, लेकिन दो अननोन्स हमने वहां पे एक अननोन फाइंड करना था, ओनली U1,
तो जब उसको उसके डेरिवेटिव को हमने इक्वेशन 1 में पुट किया तो मुझे एक इक्वेशन था मेरे पास और एक ही अननोन था। सो एक इक्वेशन से मुझे एक अननोन आराम से मिल गया, लेकिन अब मेरे पास दो अननोन है u1 एंड u2। लेकिन मैं जब उसको दो दफा डिफरेंशिएट करूंगा और इक्वेशन 1 में पुट करूंगा तो मेरे पास इक्वेशन एक होगा लेकिन अननोन दो होंगे। ये बात समझ में आ रहा है? जी सर। अच्छा जी, अगर इक्वेशन एक हो और अननोन दो हो तो ये तो हम फिर वो u1 u2 को नहीं फाइंड कर सकते। तो यहाँ पे हम एक और इक्वेशन बनाने के लिए, ताकि मेरे पास दो इक्वेशंस भी बन जाए और दो अननोन्स भी हैं ऑलरेडी, सो उन दोनों इक्वेशंस के बेस पे मैं उन दोनों अननोन्स को फाइंड कर सकूंगा। तो यहाँ पे मैं एक कंडीशन इम्पोज कर रहा हूँ कि लेट द एडिशन ऑफ दीज टू u1 dash y1 u2 dash y2 is 0। सो इस इक्वेशन को अपने साथ रख ले, ये अपने ऐसे नहीं बनाया, ये अपने एक खास मकसद के लिए बनाया है, तो इसको हम यूज करेंगे। दिस इज इक्वेशन 3। और मैं आपसे ये भी कहूंगा कि ये दोनों टर्म्स क्यों, एक टर्म क्यों नहीं, दो टर्म्स क्यों, तीन क्यों नहीं, ठीक है जी। और फिर तीसरी बात ये, मैंने एक टर्म क्यों जीरो नहीं लिया, मैंने दो क्यों लिए, मैंने तीन क्यों नहीं लिए, और मैंने खासकर इन दोनों को क्यों जीरो लिया, इस पॉइंट को मैं आगे समझाऊंगा, ठीक है जी। क्योंकि इसमें u पे वो मैं थोड़ा सा आगे इसको समझाऊंगा कि मैंने ये दोनों क्यों जीरो लिए। सो मैं फिलहाल yp लिख रहा हूँ। व्हाट विल बी योर yp? योर yp एज sorry y dash p will become u1 y1 dash plus this is u2 dash into y2, क्योंकि ये दोनों तो जीरो हुए ना, इन दोनों का एडिशन, तो बाकी रह गया ये टर्म और ये टर्म। क्लियर हुआ? u2 y2 डैश। जी जी, नहीं y2 डैश नहीं है, u1 y1 डैश एंड u2, यस u2 y2 डैश, यस यस यस। सो व्हाट इज, मुझे अब y डबल डैश p की भी जरूरत है। सो यू टेक y डबल डैश p, उसी का डेरिवेटिव ले लें। You take, this will become u1 dash y1 dash, this will become plus u1 y1 double dash, so plus this is u2 y dash y2 dash, and this is plus u2 y2 double dash. So this is your double derivative. This is okay? Yes sir. Okay ji. Now this is your yp, this is your y dash p, and this is your y double dash p. Okay, so put these three values in equation number 1. Okay, put these three values in equation number 1. ये क्लियर हुआ? इंस्टेड ऑफ y dash and y double dash, ठीक है जी। Yes sir. ओके जी, तो जैसे आप पुट कर लेंगे इसको इक्वेशन 1 में, आपको मिल जाएगा, ये आपको मिल जाएगा, देख लें, ये आपको मिल जाएगा। ये इक्वेशन नजर आ रहे हैं, u1 y1 डबल डैश प्लस p y1 डैश प्लस q y1 प्लस u2 y2 डबल डैश प्लस p y2 डैश प्लस q y2, ये नजर आ रहे हैं इक्वेशन? जी सर। अच्छा जी, तो जैसे आप पुट कर लेंगे तो कुछ टर्म्स में से u1 कॉमन हो जाएगा, उसको कॉमन करें, कुछ टर्म्स में से u2 कॉमन हो जाएगा, वो कॉमन करें, और जिसके साथ u1 u2 नहीं है वो अलग लगे, इक्वल टू f ऑफ x होगा इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 आपका क्या है? इक्वेशन 1 आपको मैं रिमाइंड कर लूं, ये आपका इक्वेशन 1 है, ये y डबल डैश प्लस p x y डैश प्लस q x y इक्वल टू f ऑफ x।
सो y डबल डैश की जगह y डबल डैश p की वैल्यू पुट करें, y डैश की जगह y डैश p की वैल्यू पुट करें और y की जगह y p की वैल्यू पुट करें। सो यू विल गेट दिस इक्वेशन, दिस वन, दिस फर्स्ट वन। इसमें से u1 जिन टर्म्स के साथ हैं वो कॉमन करें, u2 जिन के साथ हैं वो कॉमन करें और बाकी रह गए वो लिख लें। ठीक है जी। यस सर। अच्छा जी, अब देखिए u1 के साथ जो फंक्शन आपको नजर आ रहे हैं, जो 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 टर्म नजर आ रहे हैं y1 डबल डैश प्लस p y1, जीरो हो जाएगा। ये तो जीरो होगा। इसी तरह ये दूसरा भी जीरो बन जाएगा क्योंकि ये होमोजीनियस इक्वेशन है। लेकिन होमोजीनियस इक्वेशन में ये देखिए ये आपका होमोजीनियस इक्वेशन है, ये आपका होमोजीनियस इक्वेशन नहीं है दिस वन। अगर अगर y1 y2 इसके सॉल्यूशंस हैं तो y1 डबल डैश प्लस p y1 डैश प्लस q y1 इक्वल टू जीरो होगा। इसी तरह y2 अगर इसका सॉल्यूशन है तो y2 डबल डैश प्लस p y2 डैश प्लस q y2 इज इक्वल टू जीरो होगा। So according to this base, this will become 0. This is 0, this is 0. So आपके पास क्या रह गया? u1 dash, y1 dash plus u2 dash, y2 dash is equal to f of x. तो आपके पास ये रह गया, ये देख लें, आपके पास रह जाएगा, जैसे आप इन वैल्यूज को पुट कर लेंगे इक्वेशन 1 में, so you will get u1 dash, y1 dash plus u2 dash, ये सिर्फ कैलकुलेशन है आप कर लेंगे, u2 डैश इक्वल टू व्हाट, इक्वल टू f ऑफ x। ठीक है जी, ये आपको मिल जाएगा। अब ये क्यों मिला है आपको, ये इक्वेशन 4 है, ये तो आपने, ये तो तब मिला है जब आपने इस इक्वेशन 3 को लेट किया। अगर आप इसको लेट न करते तो आपको कुछ और मिल जाता। ये बात समझ में आ रही है? हाँ सर। अगर आप y डैश p में इन दोनों टर्म्स के एडिशन को जीरो न लेते तो फिर ये जो इक्वेशन 4 आया है ये कुछ और बन जाता। इस बात का समझ आ रहा है ना? यस सर। असल में ये इक्वेशन 4 डिपेंड कर रहा है इक्वेशन 3 पे। अगर इक्वेशन 3 होगा तो इक्वेशन 4 इस तरह होगा। इस बात को क्लियर कर लें। अगर इक्वेशन 3 होगा तो इक्वेशन 4 इस तरह होगा, अगर इक्वेशन 3 नहीं होगा तो ये इक्वेशन 4 कुछ और होगा। इट विल बी डिफरेंट। सो इट मींस इक्वेशन 4 and equation 3 are dependent on each other. Clear हुआ? यस सर। So if equation depends on each other, it means this is a coupled system of equation. Coupled system of equation. So अगर हम, आप देख ले, अगर हम इक्वेशन 3 और 4 को सॉल्व करें जिसमें दो अननोन्स इन्वॉल्व हैं, कौन कौन से? u1 डैश, u2 डैश इक्वेशन 3 में भी हैं, u1 डैश, u2 डैश इक्वेशन 4 में भी हैं, है ना? सर पेयर तो हो क्या? इक्वेशन 3 और 4 को अगर हम सॉल्व करें तो आपको u1 डैश और u2 डैश की वैल्यू मिल जाएगी। u1 डैश को इंटीग्रेट करें यू विल गेट u1, u2 डैश को इंटीग्रेट करें यू विल गेट u2। तो u1 u2 जब फाइंड हो जाए yp में पुट करें यू विल गेट yp। लेकिन इक्वेशन 3 और 4 से आप u1 डैश u2 ये उसमें से देखें ना, अगर आपके पास कोई सिस्टम ऑफ इक्वेशन हो 2x प्लस 3y दिस इज इक्वल टू 1, ठीक है जी, और एक दूसरा इक्वेशन हो x माइनस वाई दिस इज इक्वल टू 2, तो ये क्या होता है? ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन नहीं होता। जैसे सिमल्टेनियस जी, सिमल्टेनियस। तो अगर 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 हम इसमें से x यहाँ पे भी है, x यहाँ पे भी है, y यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, अब ये सिमल्टेनियस इक्वेशन है 3 और 4, लेकिन ये u1 डैश और u2 डैश पे सिमल्टेनियस है।
ये y1 और y2 जो है ये तो नॉन फंक्शंस है ना, जिस तरह 2 और 3 नॉन है। यस सर, इक्वेट करेंगे तो एक फाइंड आउट हो जाएगा। y1 और y2 ऑलरेडी आपके पास yc में फाइंड हो चुके होंगे। ये या तो e पावर x होगा, तो फिर दूसरा e पावर माइनस x होगा, या e पावर 2x होगा, e पावर 4x होगा। सो y1 और y2 तो yc में फाइंड हो चुके होंगे। सो दीज आर नॉन फंक्शंस। सो ये जो y1 और y2 है ये नॉन होंगे। अगर ये नॉन होंगे तो उसका डेरिवेटिव भी नॉन होगा। सो दीज फोर आर नॉन वैल्यूज। मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है, y1 की बात कर रहा हूँ। y1 एंड y2 आर नॉन वैल्यूज। सो अननोन कौन से हैं इसमें, इन दोनों इक्वेशन? u1 एंड u2। यस, u1 डैश एंड u2 डैश। ओके, सो आपने क्रेमर रूल पढ़ा है? यस सर। अच्छा जी, अगर क्रेमर रूल पढ़ा है तो फिर तो आप इससे u1 डैश और u2 डैश आराम से फाइंड कर सकते हैं। चलिए मुझे बता दे, कौन बता सकता है कि व्हाट इज u1 डैश अकॉर्डिंग टू क्रेमर रूल? व्हाट इज u1 डैश, कौन बताएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ u1 डिवाइड बाय u1 u2 का प्रोडक्ट का डिटर्मिनेंट सर। यस, आप देखें, आपका u1 डैश जो है, u1 डैश जिस तरह हम x लिखते हैं, u1 डैश विल बी इक्वल टू w1 डिवाइडेड बाय w, and w2 u2 dash, this will be equal to w2 divided by w. What is now w? w is what? This is according to Kramer rule में सॉल्व कर रहा हूं मैं, और कुछ नहीं कर रहा। क्रेमर रूल में आप इसके कोएफिशिएंट ले लें। सो कोएफिशिएंट पहले टर्म में y1 है, दूसरे में y2 है, दूसरे इक्वेशन के कोएफिशिएंट ले ले। क्या है? y1 डैश और y2 डैश, ये है ना। यस सर। अगर आप इस इक्वेशन में कोएफिशिएंट लेते, जो ऊपर मैंने दो इक्वेशन लिखे हैं, तो क्या लेते? 2 3 1 -1। जी सर। अच्छा, w1 क्या होगा, कौन बता सकता है? w1 में आपने सिर्फ पहले w का जो पहला कॉलम होता है उसकी जगह आपने इसके राइट हैंड साइड वैल्यूज को लिखना है, ये दोनों वैल्यूज, ठीक है जी। 0 एंड f ऑफ x, 0 एंड f ऑफ x। और y2 का जो w का सेकंड कॉलम है उसको ऐसे ही रहने देना है। सो दिस इज योर w1। व्हाट इज योर w2, ये कौन बताएगा? w2 में आपने पहले कॉलम w का ऐसे ही लिखना है, y1 y2, और जो सेकंड कॉलम है उसको 0 और f ऑफ x में रिप्लेस करना है। ठीक है जी, ये क्लियर हुआ ना? दिस इज क्रेमर रूल। सर ये y2 नहीं होगा, y1 डैश होगा। दिस इज y2 y1, यस y1 एंड यस 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 यस। अच्छा जी, ये क्लियर हुआ। तो ये मुझे आप बता दें, ये जो स्लाइड पे कैलकुलेशन हो रही हैं एक्चुअली ये सारी मैंने कर ली, ठीक है जी। सो लास्ट पे ये कह रहे हैं कि u1 डैश आपको मिल जाएगा w1 बाई w, w2 बाई w। तो फिर u1 क्या होगा? u1 उसका इंटीग्रल बन जाएगा ना। w1 बाई w को इंटीग्रेट करें, यू विल गेट u1, w2 बाई w को इंटीग्रेट करें, यू विल गेट u2। तो इसको जहन में रख ले। नाउ अब समरी पे जाते हैं। समरी मुश्किल नहीं है। तो समरी में आप ये करें कि आपके पास अगर कोई नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है तो पहले क्या करें? पहले स्टेप में क्या करें? पहले स्टेप में उसको होमोजीनियस बनाएं। सेकंड स्टेप में आप उस होमोजीनियस को सॉल्व करें, यू विल गेट c1 y1 प्लस c2 y2, और रॉन्स्कियन फाइंड करें w। थर्ड स्टेप में चलिए फोर्थ स्टेप में आप y1 w1 w2 फाइंड करें। फिफ्थ स्टेप में w1 को w पे डिवाइड करें w। बहरहाल आप ये वैसे भी करेंगे तो इस स्टेप्स की जरूरत नहीं है। चलो हम एक एग्जांपल पे चलते हैं।
ताकि ये थोड़ा सा क्लियर हो जाए। सर जी सर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन जब था तो आपने वो होमोजीनियस पार्ट वाला सॉल्व किया, और जब सेकंड ऑर्डर बना तो आपने नॉन होमोजीनियस सॉल्व किया। तो सर इसमें थोड़े कंफ्यूज है। नहीं, उसमें भी डायरेक्टली मैंने वाईपी की वैल्यू पुट की थी इक्वेशन में, यहाँ पे भी मैंने पुट की है, लेकिन यहाँ पे दो इक्वेशंस मिले तो उसको मैंने सॉल्व किया। वहां पे एक इक्वेशन था और एक अननोन था, तो डायरेक्टली सॉल्व हुआ था। उससे मेरा तो काम नहीं है कि मतलब राइट साइड क्यों आया। मैंने कैलकुलेशन से जो फार्मूला मिला है मैं उसी को यूज करूंगा। तो एफ ऑफ एक्स तो उसमें नजर नहीं आया सर, और यहाँ पे एफ ऑफ एक्स भी मतलब वो रिप्रेजेंट हुआ। वहां पे एफ ऑफ एक्स कहा रहा था, एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई y1, मैंने u1 की वैल्यू निकाली थी, आप देख ले। अच्छा अच्छा ठीक है सर, ठीक है। So the example is, suppose y double dash minus 4y dash, this is plus 4y, this is equal to x plus 1, this is x plus 1 into e power 2x। तो ये आपको नॉन होमोजीनियस लग रहा है ये इक्वेशन? यस सर। अच्छा जी, अब YC के लिए हम क्या करेंगे? फॉर YC तो हम ये कर सकते हैं ना कि हम इसको इक्वल, फॉर YC हम करेक्टरिस्टिक इक्वेशन, चले मैं पहले उसको होमोजीनियस बना रहा हूँ, माइनस 4y डैश प्लस 4y, दिस इज इक्वल टू 0। सो इसका करेक्टरिस्टिक इक्वेशन चले मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ। सो YC आपका होगा C1 e पावर 2x, क्योंकि दो सेम रूट्स आएंगे, अगर आप करेंगे तो टू रूट्स आएंगे। मैं सेकंड इसको ऐसे नहीं लिख सकता, C2x e पावर 2x लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना? यस सर। इसमें y1 आपका क्या है, चलिए ये मुझे आप बता दें। जब YC आ जाए तो एक्चुअली आपको y1 y2 की वैल्यूज मिल गए। दिस इज y1, yes, and y2 is this one, e power x e power 2x, this is your y2. So you will select y1 and y2 and yc. Now what is yp? yp क्या होगा याद है? yp will be equal to u1 y1 plus u2 y2. So u1 u2 फाइंड अगर हो जाए तो y1 y2 ऑलरेडी फाइंड हो चुके हैं, मैं इसमें यहाँ पे पुट कर लूंगा, you will get yp. So what is u1? u1 dash is this one, u2 dash is this one. So what is u1? u1 is actually w1 by w into dx, समझ आ रहे हैं? And what is u2? w2 by w into dx. This is u1 and u2. यहाँ पे क्लियर है ना? यस सर, क्लियर है। अच्छा जी, तो डायरेक्टली आप u1 और u2 का आप ये फार्मूला लिखेंगे, ये आपको याद होना चाहिए। w भी याद होना चाहिए, w1 भी याद होना चाहिए और w2 भी याद होना चाहिए, क्योंकि थ्योरी हमने पढ़ ली। अब इसमें आपको तीन चीजों की, u1 और u2 फाइंड करने के लिए आपको तीन चीजों की जरूरत पड़ती है, w, w1, w2। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट नोट करें, अगर w 0 बन जाए तो u1 और u2 आप फाइंड नहीं कर सकते। जी, सो ये मेथड तब फेल होता है जब w 0 आ जाए, ये नोट करें इस पॉइंट। When w is 0 this method fail, otherwise इस मेथड को आप हर जगह पे यूज कर सकते हैं। सो ड्रॉबैक इस मेथड का सिर्फ यही पे है जहां पे आपका w 0 बन जाए। So this is the drawback of this method, when w is 0, so you are not able to find particular solution using this method. So now what is your y1?
y1 की वैल्यू क्या है, e पावर 2x है ना। y2 की वैल्यू क्या है, x e पावर 2x। व्हाट इज y1 डैश, नीचे y1 डैश है 2 into e 2 e power power 2x। What is the derivative of this, product rule apply करें, 2x e power e 2x power 2x and plus e power 2x plus e power plus e power 2x plus e power 2 into x। So what is, अगर इसको आप ओपन करेंगे you will get e power 4x which is not equal to 0, ये 0 नहीं होना चाहिए। अब आप आगे बढ़े, W1 फाइंड करें। W1 क्या होगा, कौन बता सकता है, 0 अपनी जगह पे होगा। f of x की वैल्यू ये होगी, दिस इज द वैल्यू ऑफ f of x इन दिस केस। ये क्लियर है। yes sir अच्छा चलिए ये वैल्यूज पुट करें, यू विल गेट W1 एंड W2। सो आपके पास ये W1 आ जाएगा, W1 आपके पास आ जाएगा दिस वन माइनस एक्स प्लस वन एक्स ई पावर 4x। W2 आ जाएगा x प्लस वन ई पावर 4x। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करें, W1 को W पे डिवाइड करें, द वैल्यू ऑफ W1 इज माइनस एक्स प्लस वन एक्स ई पावर 4x and the value of W is e power 4x. So this become minus x square minus x. This is actually u1 dash. लेकिन अगर आपने u1 फाइंड करना है तो इस माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को एक दफा इंटीग्रेट करें, सो यू विल गेट माइनस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 एंड सिमिलरली w2 बाई w को इंटीग्रेट करें, यू विल गेट एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स। फाइंड हो गए ना। sir अगर ये फाइंड हो गए तो आपने कहाँ पे पुट करना है, दिस इज u1, दिस e power 2x is y1, this is u2 and x e power 2x is y2, so yp में पुट करें। क्लियर हुआ। जी सर। अच्छा जी, अगर ये क्लियर है तो मेरे ख्याल में अब मुश्किल नहीं है आपको। चले मैं एक सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ ताकि मैं उसको कवर कर सकूँ। मैं इसको ले रहा हूँ, अगर मैं इसको ले लूँ y डबल डैश माइनस प्लस 3y डैश, ठीक है जी, एंड प्लस 2y, this is equal to, suppose this is equal to e पावर माइनस 2x। लेकिन आप कहेंगे कि इसको तो मैं अनडिटरमिनेट कोएफिशिएंट मेथड से भी कर सकता हूं ना। yes sir अच्छा जी, प्लस सो अगर पेपर में मेंशन ना हो तो आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं, लेकिन अगर मेंशन हो तो आप उसको ऐसे ही करेंगे। सो YC क्या होगा, कोई बता सकता है। ये नहीं होगा, होगा ना। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट नोट करें, आप e पावर माइनस एक्स को पहले भी लिख सकते हैं, e पावर माइनस 2x को बाद में भी लिख सकते हैं। तो ये y1 y2 फर्क नहीं पड़ रहा कि आपस में रिप्लेस हो जाए, ठीक है जी। yes sir अच्छा जी, तो अगेन W1 बाई W तो वही होगा, W2 बाई W तो वही सर ये होगा जी, W का फार्मूला वही होगा, ठीक है जी। सो y1 वाईसी रिपीट जी, वाईसी किस तरह है सर, ये समझ नहीं है। YC इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 2 होगा।
m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 2, तो उसको आप लिखेंगे तो m प्लस 2 इंटू m प्लस 1 आ जाएगा, m प्लस 2 इंटू m प्लस 1। सो m की वैल्यू -2 एंड -1 होगी। ऐसे नहीं होगा। बस सर आगे चाहिए, समझ आ गई। हाँ जी। सो W1 बाई W एंड W2 बाई W, तो इसमें W तो फाइंड करना मेरे ख्याल में मुश्किल नहीं है। Y1 Y2 आपका क्या है? अब ये है Y1 ये है और Y2 ये है, ये तो क्वेश्चन में मेंशन होंगे। सो आपको तीन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, एक Y1 Y2 और एक f ऑफ x। अगर ये तीनों आपके पास मौजूद हैं तो मेरे ख्याल में W, W1, W2 तो आप फाइंड कर सकते हैं। वो तो 2 क्रॉस 2 का डिटरमिनेंट है ना। आपको तीन चीज़ों की ज़रूरत है, f ऑफ x, y1, y2। f ऑफ x तो गिवन होगा क्वेश्चन में, y1, y2 तो आप yc से देख लेंगे। सो अगर ये तीन चीज़ें आपके पास हैं, सो यू आर एबल टू फाइंड u1 एंड u2, बिकॉज u1 और u2 में w1, w2 यूज़ होते हैं और w, और उसमें ये तीन चीज़ें यूज़ होती हैं, y1, y2, उसके डेरिवेटिव वो तो अगर नॉन है तो डेरिवेटिव भी ले लेंगे, और f ऑफ x। सो मेरे ख्याल में ये मुश्किल नहीं है, आप खुद कर लेंगे। ठीक है जी। सो दिस इज एग्जांपल 2। एग्जांपल 2 का YC कैसे फाइंड करेंगे? और y डबल डैश प्लस 36 y इक्वल टू 0 नहीं होगा। सर ये राइट साइड पे क्या है? C3x ये क्या है सर? कोसेकेंट 3x, कोसेकेंट 3x। 4m square plus 36 equal to 0। यस, 4m स्क्वायर प्लस 36 m इज इक्वल टू 0। लेकिन अगर m 4 पे डिवाइड करे तो m स्क्वायर प्लस 9 आ जाएगा ना। यस यस सर। ओके जी, तो m की वैल्यू क्या होगी? प्लस माइनस 3 आयोटा नहीं होगा? होगा सर। अच्छा जी, तो m अगर प्लस माइनस 3 आयोटा है तो आप YC कैसे लिखेंगे? चलिए बता दें आप। e पावर 0 cos 3x plus sin minus 3x। e पावर 0x मल्टीप्लाइड बाई C1 cos 3x प्लस C2 sin 3x। So e power 0x is 1, so your YC is C1 cos 3x। So आपका Y1 क्या बना, ये कौन बताएगा? cos 3x। Y2 is sin 3x, yes। So अगर और f of x क्या होगा इस क्वेश्चन में? कोसेकेंट 3x नहीं होगा? होगा सर। अगर ये तीन चीजें फाइंड हो जाए तो W तो फाइंड करना सिंपल है, Y1, Y2, Y1 डैश, Y2 डैश व्हिच इज 3, और W1 क्या होगा? 0 f ऑफ x, Y2, Y2 डैश, तो ये भी सिंपल है। W2 क्या होगा? ये होगा। सो मेरे ख्याल में ये सिंपल है। नेक्स्ट एग्जांपल 3। एग्जांपल 3 में आपका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या बनेगा होमोजेनियस का? m स्क्वायर माइनस 1 होगा ना? यस सर, m square minus 1 equal to 0। यस, सो m इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। सो YC ये नहीं होगा C1 e पावर x प्लस C2 e पावर माइनस x होगा ना? सो यहां से तो आपको Y1 मिल गया ना, Y1 एंड Y2 मिल गए। जी सर समझ रहे हैं सर, ठीक है। अच्छा जी, अगर Y1 Y2 मिल गए तो फिर इट मींस के आपका f ऑफ x तो 1 ओवर x है। आपको तीन चीजों की जरूरत पड़ती है, बाकी W, W1, W2 फाइंड करने के लिए वो फाइंड हो गए। सो दिस इज द प्रोसीजर। सो दिस इज एग्जांपल 3, नाउ दिस इज एग्जांपल 4। दिस इज एग्जांपल 4, सो द प्रोसीजर इज गिवन। दिस इज एग्जांपल 5, सेम प्रोसीजर। सो दिस इज एग्जांपल 6। नाउ दिस इज एग्जांपल 7, लेकिन एग्जांपल 7 में थोड़ा सा आप गौर करें। चलिए मुझे बता दें क्या करेंगे। यहाँ पे आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन नहीं लिखेंगे, यहाँ पे x स्क्वायर पे डिवाइड।
नहीं आप नहीं, यहाँ पे आप क्या करेंगे, चलिए ये बता दें। एक्स स्क्वायर पे तो डिवाइड करेंगे, ये Cauchy Euler equation. Cauchy-Euler equation है, yes, because this is the coefficient are now variable and the with y double dash there is x square, with y dash there is x. So आप characteristic equation आपको sorry auxiliary equation याद है, am square plus b minus am A plus c equal to 0. So a is what? A is 1 in this case. What is b? B is minus 3. What is c? C is 3. So equation auxiliary equation क्या बनेगा, मुझे आप बता सकते हैं? m square minus 4m plus 3 equal to 0. m square minus 4m plus 3 equal to 0. ये होगा ना? Yes, sir. अच्छा जी, उसको सॉल्व करेंगे तो m1 m3 मिलेगा। सो Cauchy-Euler का अगर याद है तो c1x पावर m1 और c2x पावर m2 होता है ना। सो दिस इज एक्चुअली c1x प्लस c2x क्यूब। ये समझ आ गया? Yes, जी sir. सर। अच्छा, y1 इसमें क्या होगा? x नहीं होगा। y2 क्या होगा? x क्यूब होगा। ठीक है जी। अब जनरल इक्वेशन में y डबल डैश माइनस पी एक्स वाई डैश प्लस क्यू एक्स वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होता है। तो एफ ऑफ एक्स सेलेक्ट करने से पहले आप y डबल डैश को ये कोएफिशिएंट पे डिवाइड करेंगे। सो एफ ऑफ एक्स इज योर 2x स्क्वायर ई पावर x। ये क्लियर है? जी। अच्छा जी, अगर आपके पास एफ ऑफ एक्स भी गिवन है, y1 भी है, y2 भी है, तो मेरे ख्याल में आप तो w1 आराम से फाइंड कर लेंगे, w भी कर लेंगे, w2 भी कर लेंगे, फिर आपस में डिवाइड भी कर लेंगे और एक दफ़ा इंटीग्रेट भी कर लेंगे। ठीक है जी, यू विल गेट u1 एंड u2। अगर समझ नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन। सर जब हम जनरल मेथड पढ़ते थे तो उसमें तो पूरी कहानी थी, वो u1 u2 और वो जीरो लेना वगैरह वगैरह, और ये डायरेक्ट करते हैं सर। तो फिर वो जनरल मेथड और इसमें फर्क है सर, कंफ्यूजन है थोड़ी। क्या करते थे हम? वो जब करते थे तो पूरा वो प्रोसीजर पढ़ते थे, u1 का डिराइवेटिव y1 जीरो लेते थे। आपने कहा भी कि मतलब ये मैं बाद में समझाऊंगा कि ये क्यों लिया। वो तो आप इस क्वेश्चन से इन एग्जांपल में तो नहीं करते, डायरेक्टली करते फार्मूले पे, वो रीजंस वगैरह। असल में एक होती है थ्योरी, ठीक है जी, और जी उस सर। थ्योरी पे बार बार तो आप नहीं जाएंगे, उस थ्योरी से आपने रिजल्ट कंक्लूड करने होते हैं, फिर उस रिजल्ट्स के बेस पे आगे आप काम करते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। डेवलप किए ना, अब उन डेवलप्ड रिजल्ट को यूज कर रहे हैं। ठीक थ्योरी है तो सर। एक दफा डेवलप होती है ना। अब उस बेस पे हमने थ्योरी डेवलप की कि u1 w1 by w होगा, u2 w2 by w होगा, अगर u3 होगा तो वो w3 by w होगा। ये थ्योरी हमने डेवलप की, पर w1 क्या होगा, w क्या होगा, w2 क्या होगा, ये थ्योरी में हमने डेवलप कर ली चीजें। जी ठीक है सर। अच्छा जी, अब ये कह रहे हैं कि अगर हायर ऑर्डर हुआ तो अगर n इज इक्वल टू 3 हुआ तो u1 डैश u2 डैश u3 डैश, लेकिन थर्ड ऑर्डर पे हम नहीं जा रहे क्योंकि फिर वो 3x3 मैट्रिक्स बनेगा। w में 3x3 होगा ना अगर ऑर्डर 3 है w। क्यों? क्योंकि अब 3 सॉल्यूशंस होंगे, तो w के पहले कॉलम में w1 w2 w3 होगा, नेक्स्ट पहले रो में, सेकंड रो में w1 डैश w2 डैश w3 डैश होगा, और फिर सेकंड थर्ड रो में w1 डबल डैश फिर इस तरह होगा, तो फिर w3 क्रॉस 3 होगा। ठीक है जी,
तो 3x3 पे हम नहीं जा रहे हैं क्योंकि फिर आपको 4 डिटरमिनेंट्स भी फाइंड करने होंगे, वो थोड़ा सा लेंथी होगा, उस पे हम नहीं जा रहे हैं। सो दिस इज सेकंड टॉपिक। एक टॉपिक हमने पढ़ लिया, नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कंटिन्यूसली हम सेकंड क्लास में पढ़ रहे हैं। पहले क्लास में जब हमने स्टार्ट किया था, क्लास 5 की बात कर रहा हूँ, वीक 5, तो हमने होमोजीनियस इक्वेशन से स्टार्ट किया था, इफ यू रिमेंबर। फिर सेकंड क्लास में हमने नॉन होमोजीनियस पढ़े। नॉन होमोजीनियस में हमने मेथड ऑफ अनडिटरमिन्ड कोएफिशिएंट मेथड पढ़ा, लेकिन उसके थोड़े से लिमिटेड सॉल्यूशंस थे। हम हर नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकते थे उस मेथड से, सो इसलिए हम थोड़े से एक और मेथड पे जाने लगे, जिसको हम मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर कहते हैं। अब इस मेथड से आप जो भी एफ ऑफ एक्स हुआ, राइट साइड में नॉन होमोजीनियस टर्म की बात कर रहा हूँ, सो यू कैन हैंडल एंड यू कैन फाइंड वाई पी। लेकिन सिर्फ एक चीज इसमें है कि वो डब्ल्यू जो है अगर 0 हुआ तो फिर वाई पी आप फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है जी, जी समझ आ रहा है ना? यस सर। ओके जी, ओके जी। सो ये एक एग्जांपल में थोड़े से ग्राफिकली एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये एक स्प्रिंग है जिसका लेंथ जो है वो L है, उसके साथ अगर मास अटैच करें, जिसका मास जो है एक ऑब्जेक्ट आप अटैच करें जिसका मास m है। सो सपोज मास अटैच करने के बाद उसका लेंथ बना L प्लस S। मास अटैच करने के बाद चूंकि वो उस पे ग्रेविटी की वजह से उसका वेट जो है वो एक फोर्स होगा ना। स्प्रिंग डिस्प्लेस क्यों होगा? डिस्प्लेस जब भी कोई चीज होती है विदाउट फोर्स डिस्प्लेसमेंट नहीं होती ना। बिल्कुल सर। ओके जी। सो अगर ये स्प्रिंग डिस्प्लेस हुआ है, सो इट मींस देयर इज सम फोर्स एक्टिंग ऑन द स्प्रिंग व्हिच इज एक्चुअली द वेट ऑफ दिस बॉडी। अगर 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 और ये भी हमने पढ़ा है कि एवरी एक्शन हैज ए रिएक्शन इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, ये पढ़ा है ना। सो अगर वेट नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है तो उसका एक अपोजिट फोर्स भी होगा जो ऊपर की तरफ एक्ट करेगा, which is the internal force inside the spring। ठीक है जी, ये तो क्लियर है ना? यस। अच्छा जी। अगर 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 आप किसी मास अगर किसी स्प्रिंग के साथ 2 kg मास अटैच करें तो हो सकता है कि वो मास डिस्प्लेस ना हो, सॉरी वो स्प्रिंग डिस्प्लेस ना हो। इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब ये होगा जो उसके अंदर इंटरनल इलास्टिक फोर्स हैं स्प्रिंग के अंदर, वो उस वेट से ज्यादा हैं। लेकिन अगर वो डिस्प्लेस हो जाए तो इसका मतलब ये होगा कि वेट वाला फोर्स ज्यादा है। यही हम कह सकते हैं ना। यस सर। अच्छा जी, अगर वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है तो फिर हम कहेंगे कि दोनों का एडिशन 0 है, ऐसे होगा ना। यस सर, बराबर होगा। ओके जी। नाउ लेट कम्स टुवर्ड्स दिस थ्योरी। ये इक्वेशन 1 जो आपको नजर आ रहे हैं उसका लेफ्ट साइड क्या शो कर रहे हैं, चलिए ये मुझे आप बता दें। एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशन। यस, दिस इज फोर्स ma, दिस इज फोर्स ma। ठीक है जी। लेफ्ट साइड पे एक्सेलरेशन है, लेफ्ट साइड पे एक्सेलरेशन है, राइट साइड पे क्या है? सम ऑफ फोर्सेस, सम ऑफ फोर्सेस इज इक्वल टू ma। इसी तरह होता है ना। यस सर। सो सम ऑफ फोर्सेस में इस केस में 2 फोर्सेस हैं, एक mg है और एक -kx s प्लस x है।
एस प्लस एक्स में आगे एक्सप्लेन कर लूंगा. माइनस के एस इज इक्विलिब्रियम पोजीशन एंड एक्स इज दी वाइब्रेशन ऑफ द स्प्रिंग. अगर वो वाइब्रेट हो रहे हैं सो एस प्लस एक्स भी कभी एक्स नेगेटिव भी हो सकता है अगर वो मीन पोजीशन से ऊपर होगा. अगर वो मीन पोजीशन से नीचे होगा तो एक्स पॉजिटिव होगा. सो बहरहाल के माइनस के एस इज एक्चुअली द मीन पोजीशन एंड एस प्लस एक्स इज एक्चुअली द अदर पोजीशंस. ठीक है जी. So mg minus ks plus x, this is the sum of forces. So sum of forces is equal to ma. So अगर इसको आप expand करें, you will get minus kx plus mg minus ks. This mg minus ks is 0. So this will become md square x by dt square is equal to what? Is equal to kx. So ये एक differential equation है किस चीज का? एक मास का अटैच्ड विद स्प्रिंग. सो अगर कोई आपसे कहे कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ ए स्प्रिंग ऑफ ए मास अटैच्ड विद ए स्प्रिंग, सो आपने ये इक्वेशन लिखनी है. इफ देयर इज नो अदर फोर्सेस, इफ देयर इज नो अदर फोर्सेस, दैट इज इफ देयर इज नो एयर फोर्स, देयर इज नो प्रेशर ऑन द ऑब्जेक्ट. So if there is only internal forces, internal forces means gravity is also internal, which is attached with the system. So if something is attached with system, so this force is called internal force. And उसका जो अपना internal force है elastic, वो भी उसका internal है. So these two forces are actually internal forces. So md square x by dt square, this is equal to what? This is equal to minus kx. This is the equation of a mass attached with the spring if there is no other forces. ये clear हुआ? जी सर. अच्छा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं d square x by dt square for solution purpose, which is equal to असल में एक बात नोट करें, मैं थोड़ा सा चले इसको मैं लिख लूँ. इसको मैं माइनस ओमेगा स्क्वायर लिख सकता हूँ. माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ इसको. जी जी सर. यस स्प्रिंग कांस्टेंट. यस नहीं, आप इसको ऐसे लिखें k ओवर m इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर. मैंने इसको ओमेगा स्क्वायर का नाम क्यों दिया, चलिए ये बता दें. सर ये कांस्टेंट भी कांस्टेंट है, मास भी कांस्टेंट से डिवीजन सी भी कांस्टेंट रहेगा, तो नहीं कांस्टेंट है इस इक्वेशन में सर. तो मैंने ओमेगा स्क्वायर क्यों दिया, मैं ओमेगा क्यों नहीं दिया? सर हमारे पास कांस्टेंट अंडर रूट के बाय m के बराबर है सर. नहीं सर बिल्कुल इसी तरह. आप ये बता दें ये वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी. चले सर ये तो पॉजिटिव होगी सर. पॉजिटिव होगी. यस, बिकॉज m तो जीरो नहीं होगा ना जो मास अटैच्ड है. कुछ ना कुछ मास तो होगा उसका. इज इट क्लियर? m जीरो नहीं होगा, k जीरो हो सकता है. नो सर. k जीरो नहीं, कांस्टेंट नो. k जीरो नहीं हो सकता. ठीक है जी. सो k भी जीरो नहीं हो सकता, m भी जीरो नहीं हो सकता, और दोनों पॉजिटिव भी होंगे. अगर मैं आपसे कहूं कि गैस पार्टिकल्स के अंदर k की वैल्यू क्या होगी, उस पर अप्लाई नहीं हो रहा, लेकिन बहरहाल मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं. उसका इंटरनल फोर्स है गैसेस के पार्टिकल्स के दरमियान में से, नहीं है ना? जी नेग्लिजिबल है सर. हाँ, सो इट मींस द इलास्टिक फोर्स बिटवीन द गैस पार्टिकल्स इज जीरो. सो जीरो तो पॉसिबिलिटी है, लेकिन नेगेटिव तो पॉसिबिलिटी नहीं होती ना. जी सर. So k or m must be positive. So if you divide two positive numbers, so the result will be positive. So every positive number
every positive number, suppose this is 3, this is positive, you can write every positive number in the form of square. आप square में लिख सकते हैं every positive number, if it is positive you can write in the form of square. तो इसलिए ओमेगा स्क्वायर का नाम वो दे रहे हैं, नेगेटिव को आप नहीं लिख सकते। ये क्लियर हुआ? अच्छा जी, ये पॉइंट को जब आप गौर से देखेंगे तो चीजें ऑटोमेटिकली क्लियर होती जाएगी। अब आप मुझे बता दें सर तो स्क्वायर में लिखने की हमारे साथ जरूरत क्या थी? दिस इज अनदर क्वेश्चन। स्क्वायर में लिखने की जरूरत इसलिए है कि अगर पॉजिटिव है तो हम उसको स्क्वायर में लिख सकते हैं, ये तो क्लियर हुआ ना, ये बात क्लियर हुई? यस सर। अच्छा जी, अगर ये बात क्लियर हुई तो आगे ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? क्वाड्रेटिक नहीं है, सेकंड ऑर्डर नहीं है। हाँ सर। अगर सेकंड ऑर्डर है तो इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन अब इस केस में m स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर नहीं होगा। ओके सर। सो m प्लस माइनस आयोटा ओमेगा नहीं होगा। जी सर। सो अगर आप इसको ओमेगा स्क्वायर न लिखते तो ये ओमेगा लिखते तो ये ओमेगा स्क्वायर रूट बन जाता, कोई मसला नहीं था, कोई मसला नहीं था। सिर्फ इस m स्क्वायर की वजह से मैंने उसको ओमेगा स्क्वायर दिया ताकि इसके रूट आराम से ले सकूं, और कोई वजह नहीं है। ओके सर। अच्छा, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, कौन बता सकता है? e पावर 0, लेकिन e पावर 0 t होगा, नॉट x नाउ, e पावर 0 t, क्योंकि मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल अब t है नॉट x, लेकिन ये अब yc नहीं होगा, xc होगा। समझ आ रहा है ना? क्योंकि नो इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज x। सो मुझे आप बता दे c1 cos ऑफ ये ओमेगा t नहीं होगा प्लस c2 साइन ऑफ ओमेगा t होगा? होगा ये ऐसे, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। सो उन्होंने ऐसे लिखा कि उसका जो सॉल्यूशन है, ये देखें, तो ये थोड़ा सा एमएच जो है ये आपके पास होगा, ये है डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। सो इसका जो सॉल्यूशन होगा ये यहाँ पे तो डिस्प्ले नहीं हो रहा, ये होगा ना एक्स टी इक्वल टू c1 cos ओमेगा टी प्लस c2 sin ओमेगा टी, ऐसे होगा। ये होगा ना उसका सॉल्यूशन जी? यस सर। अच्छा जी, अब एग्जाम्पल पे चलते हैं, एग्जाम्पल पे चलते हैं, ठीक है जी? थोड़ा सा इस एग्जाम्पल को गौर से सुन लें। एक मास है जिसका वेट जो है वो 2 पाउंड है, वो एक स्प्रिंग के साथ अटैच कर रहे हैं जिसका लेंथ जो है, जिस स्प्रिंग का लेंथ 6 इंच है, ठीक है जी? समझ आ रहा है? यस सर। अच्छा जी, अब देखें, ये थोड़ा सा मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर लूँ। ये एक स्प्रिंग है जिसका लेंथ जो है L वो 6 इंच है, 6 इंचेस, उसके साथ मास अटैच हो रहे हैं। आफ्टर अटैचमेंट ऑफ मास this become the length become what? Now it become 8 inch। ये क्लियर हुआ? यस सर। अच्छा, इंक्रीज कितना आया? 2 इंचेस, दिस इज इंक्रीज। अच्छा जी, अब मुझे इस इक्वेशन, इस स्प्रिंग मास अटैच इक्वेशन के लिए मुझे 2 चीजों की जरूरत पड़ती है, एक m और एक k। 2 चीजों की जरूरत पड़ती है ना, m और k। सो m कैसे फाइंड करें, बता दें मुझे? ये आपको पता है हुक्स लॉ के फोर्स इज इक्वल टू व्हाट? kx।
minus k. Yes. So what is the value of m? This is force's weight. This is 2. What is x? X is the increase. So this is 2. So k. लेकिन ये अगर हम फीट में कन्वर्ट कर ले so ये 1/2 बन जाएगा. 6 inches is equal to 1/2 feet. This is 1/2 feet. ठीक है जी. और 8 inch is equal to 2/3 feet. So 2/3 feet से 1/2 feet निकाल ले, you will get what? ये देखें. Extension. Yes. So you will get 1/2. X is 1/2. Clear हुआ? And feet 2 inches is equal to 1/2 feet. ये ज़हन में रख ले. So this will become k is equal to 4. अब m किसके इक्वल है? क्योंकि मुझे m की भी जरूरत है ना. मुझे m की भी जरूरत है यहाँ पे. So what is m? m w/g नहीं होगा ना. अब w किसके इक्वल है? वेट कितना है? 2 पाउंड है ना. और g किसके इक्वल है? 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल नहीं है. 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर. So this become 1/16. So m is 1/16. So इस इक्वेशन में s m की जगह 1/16 पुट करें और s k की जगह 4 पुट करें. So you will get this equation d square x by dt square plus 64x equal to 0. या इससे पहले लिख ले m is 1/16, k is 4. So this become d square x by dt square plus 64x is equal to 0. ये क्लियर हुआ? जी सर, क्लियर है. अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा? सॉल्यूशन तो बहुत सिंपल है. यहां तक तो आप आ सकते हैं ना. यहां तक ये इक्वेशन 4 की मैं बात कर रहा हूं, ये तो आ जाएगा. ठीक है जी. अब इसमें दो कांस्टेंट इन्वॉल्व है. वन इज c1, अनदर इज c2. वन इज c1, अनदर इज c2. तो इन्होंने दो इनिशियल कंडीशंस देने होंगे ताकि हम इन दोनों कांस्टेंट को फाइंड कर सकें. अच्छा, ये क्वेश्चन में दो कंडीशन किस फॉर्म में दे रहे हैं? देखें, ये कह रहे हैं 8t is equal to 0. अब ये इनिशियल कंडीशन स्टार्ट हो रहा है. The mass is released from 8 inches below the equilibrium position. So एक्सपेरिमेंट कब स्टार्ट हो रहे हैं? टाइम कब स्टार्ट हो रहे हैं? When 0 से 8 इंच, जब वो 8 इंच पे होता है उस टाइम से मेरा टाइम स्टार्ट हुआ. So x means what? Displacement. जब टाइम 0 होगा डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? 8 इंच होगी ना. yes sir 8 inch is actually 2/3 feet. So 8x is equal to 0 when when time is 0. When time is 0, displacement means the body is at the position 2/3 feet. So this is one condition. ये कंडीशन क्लियर हुआ? अगर समझ नहीं आया तो पूछ ले. clear है sir. अच्छा जी. सेकंड कंडीशन ये क्वेश्चन में खुद बता रहे हैं कि इट्स वेलोसिटी. मुझे आपको पहले से पता होना चाहिए कि एक कंडीशन x पे होना चाहिए, एक उसके डेरिवेटिव पे होना चाहिए. तो डेरिवेटिव का कंडीशन ये है कि x डैश ऑफ 0. x डैश मींस डेरिवेटिव वेलोसिटी. जब टाइम 0 था तो वेलोसिटी कितनी थी? 4/3. ये क्वेश्चन में मेंशन है. लेकिन अपवर्ड वेलोसिटी थी तो इसलिए मैं उसके साथ माइनस भी लिख लूंगा. अगेंस्ट हो रहा है ना, अगेंस्ट द ग्रेविटी वेलोसिटी है. सो दिस इज माइनस 4/3. सो दिस अपवर्ड वेलोसिटी इज 4/3. सो वेलोसिटी मींस x डैश.
सो ये दो कंडीशन है, x डैश ऑफ 0 इज इक्वल टू -4/3 एंड x इज इक्वल टू 0 2/3। तो इसको एक दफा डिफरेंशिएट करें इक्वेशन 4 को, और फिर उसमें x डैश 0 की वैल्यू पुट करें और x ऑफ 0 यू विल गेट C1 C2। क्लियर है? जी थोड़ा सा रिपीट कीजिए। अच्छा जी, ये दो कंडीशन गिवन है, देखें। एक जो है टाइम 0 पे वो बॉडी 8 इंच पे है। मुझे इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए दो इनिशियल कंडीशन चाहिए होंगे, एक x पे, एक उसके डेरिवेटिव पे। ये तो क्लियर है ना? अगर ये थर्ड ऑर्डर होता तो एक उसके डबल डेरिवेटिव पे भी जरूरत पड़ती। अब मुझे एक x पे, x मीन्स डिस्प्लेसमेंट, x डैश मीन्स वेलोसिटी, इनिशियल कंडीशन मीन्स जब टाइम 0 है तो x कितना है, वेलोसिटी कितनी है। जब टाइम 0 है तो वो 8 इंच पे है, 8 इंच मीन्स 2/3 feet. So when time is 0, x is 2/3. And when x is 0, velocity is 4/3. So x dash is 4/3 means -4/3 in upward velocity. So ये simple दो conditions है ना? यस सर, ये क्लियर है। अच्छा, now this is free damped motion. This is another example. So अगर हम इसको m, this is minus beta dx by dt, ये क्या है? बीटा इज पॉजिटिव डैम्पिंग कांस्टेंट, ठीक है जी। सो ये इक्वेशन आपके पास गिवन होगा, ये इक्वेशन आपके पास गिवन होगा। उसके डिटेल में अगर हम न जाएं तो सॉल्यूशन उसका सिंपल है। सपोज दिस इज एग्जांपल 3। इसका करेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगा? m² + 5m + 4 नहीं होगा इक्वल टू 0 होगा सर, होगा। इसको सॉल्व करने के लिए मुझे दो कंडीशंस की जरूरत पड़ेगी ना, x ऑफ 0 पे एक कंडीशन, एक x डैश ऑफ 0 पे। सो अगर ये गिवन हो तो मैं तो x ऑफ t आराम से फाइंड कर लूंगा। सो ये उन्होंने फाइंड किया है इन इक्वेशन 16। दिस इज सॉल्यूशन। दिस इज अनदर एग्जांपल। वेट कितना है? 8 पाउंड। कितना स्ट्रेच कर रहे हैं? 2 फीट। सो F इज इक्वल टू kx, ठीक है जी। आप x जो है ऑलरेडी फीट में गिवन है। सो 2, दिस इज 2, x इज 2, फोर्स इज वेट इज 8। सो F इज इक्वल टू kx मीन्स k इज 4। यहां तक क्लियर हुआ? जी सर। अच्छा जी, अब m कितना होगा? m इज इक्वल टू w/g। w इज 8, g is 32, so m is 1/4, m is 1/4, ठीक है जी। डैम्पिंग फोर्स जो है 2 times the instantaneous velocity, 2 times the instantaneous velocity, ये 2 dx/dt, ये डैम्पिंग फोर्स है। बीटा dx/dt जो होता है, this is damping force, this one beta dx/dt। तो इसकी वैल्यू गिवन है, this is what? This is equal to 2 times the instantaneous velocity. 2 times means 2 dx/dt. Instantaneous velocity dx/dt. 2 times means 2. So this is actually your differential equation. इसमें m, k और बीटा dx/dt की वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, वो पुट करें। What is the characteristic equation of this? m² + 8m + 16 equal to 0. So this m values are -4, -4. So what is xt? This is equal to c1 e power -4t, c2 e power -4t. अब इनिशियल कंडीशन क्या गिवन है? इनिशियल कंडीशन ये है कि at t is equal to 0, mass is released from equilibrium position. Equilibrium position क्या था? With an upward velocity of 3 feet. Velocity कितनी है? -3. Velocity is x dash of 0 is -3. देखें, x dash of 0 is -3.
Equilibrium position means x is zero. X is zero when time is zero. So ये दोनों condition जब आप put कर लेंगे equation 18 में, you will get x of t is this one. Clear है? जी. Yes, sir. सही. Okay जी. This is another example. सर ये यार सर ये जो स्लग यूनिट में मांग रहे हैं सर ये जरूरी तो नहीं है कि हम स्लग में काम करें. चले दोबारा देख ले आप. सर जी. सर ये जो प्रीवियस एग्जांपल हमने किए सर इसमें स्लग यूनिट में मांग रहे हैं. ये इसका यूनिट है ना. सर वो स्लग यूनिट में. हाँ हाँ. सर अगर हम इसमें ना करें सर. असल में फिजिक्स तो आपने पढ़ा है ना, यूनिट सिस्टम. आपने सबको एक यूनिट सिस्टम में लिखना है ना. सो ये फीट के लिहाज से मास का ये यूनिट होगा. क्योंकि सर ये एफईएस सिस्टम है उसमें यही होता है. जी जी. अब देखिए, अब दिस इज अनदर एग्जांपल. चलिए ये मुझे आप बता दें, वेट कितना है 8, स्ट्रेच कितना हो रहे हैं 5 से लेके 8.2 तक. तो x की वैल्यू कितनी होगी? 3.2 नहीं होगी. यस सर. अच्छा जी. सो यहाँ पे पुट करें f इज इक्वल टू के एक्स. सो यू विल गेट k इज इक्वल टू 5. ये तो क्लियर हुआ. मास जो है वो तो w बाई जी के इक्वल है. सो दिस विल बिकम 1/2. अब व्हाट इज द डैम्पिंग फोर्स is equal to the instantaneous velocity. So equal अगर है तो ये ओके जी, it will become dx by dt. क्लियर हुआ. अगर ये 2 टाइम्स होता तो 2 dx by dt होता. क्लियर है? So this will become this one. If you solve this will become this one. Solution उसका सिंपल है. So this become this one. अब देख ले कंडीशन कौन सी है. कंडीशन at t is equal to 0, the mass is released from rest. So when time is 0, x is 0. Velocity कितनी होगी? 0 होगी ना. At 2 point above the equilibrium. Sorry, velocity 0 होगी लेकिन x की वैल्यू कितनी होगी? When time was 0, 2. So ये आप नोट करें. दिस इज -2 होगी ना. जी जी सर होगी. हाँ, अगर बिलो दी इक्विलिब्रियम पॉइंट होता तो x की वैल्यू पॉजिटिव होती. अगर अबव दी इक्विलिब्रियम पोजीशन है तो x की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव होगी. ये यहाँ पे ग्राफ में ये देखें, ये अगर x इक्विलिब्रियम, दिस इज इक्विलिब्रियम पोजीशन, x is equal to 0. If it is above the equilibrium position, so x value will be negative. So if the question is if it is released from above the equilibrium position, so x value will be negative. So in this case, this is negative value. So these are examples. This is example 5. This is example 6. This is again same. So जी सर जो लास्ट क्वेश्चन हमने किया सर, तो इसमें एक x ऑफ 0 एक x डैश ऑफ 0 है. तो इसमें कौन सा x ऑफ 0 लेना है, x डैश ऑफ 0 लेना है सर? x डैश जो है वो वेलोसिटी, वो कह रहे हैं कि रेस्ट पे था बॉडी, हमने रेस्ट पे छोड़ा. at t is equal to 0 वो रेस्ट पे है. तो रेस्ट मींस वेलोसिटी इज 0. वेलोसिटी मींस x डैश. So x dash is 0 at t is equal to 0. क्लियर हुआ? ये तो बहुत सिंपल चीज है यार. ये तो 9/10 में आप कर दें. ये तो सिंपल है. So this is again a non-homogeneous differential equation. Non-homogeneous differential equation. ये नॉन होमोजीनियस है ना.
यस सर। अच्छा जी, तो यार इसको आप खुद सॉल्व करिए। पहले एक्स सी फाइंड करें, आप जिस भी मेथड से करना चाहें, अनडिटरमिन्ड कोएफिशिएंट मेथड से करें या मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से करें। सो यू विल गेट एक्स पी इज इक्वल टू दिस वन। एक्स पी मीन्स वाई पी एक्चुअली। सो इफ यू एड एक्स सी विद एक्स पी यू विल गेट द सॉल्यूशन। सो ये आपने एग्जांपल 8 खुद करना है। दिस इज सिंपल, ठीक है जी। सो ये आर एल सी सर्किट छोड़ दें। सो पेज 69 तक आप कर ले, बाकी ये दो एग्जांपल जो हैं ये छोड़ दें। ये दो एग्जांपल छोड़ दें, सॉरी आर एल सी सर्किट के 9 एग्जांपल और 10 एग्जांपल, ये दो एग्जांपल छोड़ दें क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल सर थोड़ा ब्रेक ले ले सर। ये खत्म हो रहे हैं बस 15 मिनट में। ठीक है जी। सर ये एग्जांपल बुक्स में भी है? ये बुक में होंगे, हाँ, मुझे अब क्लियर नहीं है। असल में ओपन बुक पेपर है तो कुछ चीज़ें मैंने खुद से भी उसमें से डाली हैं। ठीक है जी। सर पेपर में वही क्वेश्चन आएंगे जो मतलब है कि आपने यह एक्सप्लेन की है या एक्सरसाइज में है, उससे हट के तो नहीं आएंगे? नहीं, ये क्यों आएंगे? अगर ओपन बुक है तो कहीं से भी आ सकते हैं। ओपन बुक का मतलब क्या है पता है आपको? जो चीज टीचर ने नहीं पढ़ाई होती उसके रिलेटेड चीजें जो जो टीचर पढ़ाता है उसके रिलेटेड आएगी, ये अंडरस्टूड है, लेकिन वो नहीं आएगी जो मैंने पढ़ाई है। अगर वो आ जाए तो फिर तो आप ये तो मुश्किल हो जाएगा। ये तो आपके पास नोट्स मौजूद हैं, आप उससे लिख लेंगे तो पेपर का फायदा क्या हो। ये असल में नॉर्मल हालात नहीं है ना, थोड़े से कंफ्यूजन्स हैं। सर नॉर्मल हालात नहीं, इसलिए तो मतलब पेपर आसान बनाया ना ताकि आसानी के साथ करे। पेपर आसान होने का क्या मतलब है? मैं यही चीजें दे दूं जो आपके पास अवेलेबल हैं तो आप सारे 100% ले लेंगे, तो मुझे हमें पेपर देने की जरूरत मेरे ख्याल में फिर नहीं है। 100 नंबर दे देंगे अगर हमें इख्तियार दिया जाए। सर तो बस दे दे। इस मतलब अगर अगर यही चीजें लेके आनी है तो फिर इसके बजाय कि हम अपना टाइम जाया करें फिर आपको नंबर दे देंगे सबको। क्यों हम पेपर बनाए, फिर क्यों हम आपको सेंड करें, फिर क्यों उसको चेक भी करें? फिर तो चेक करने की भी जरूरत नहीं है, आपको सेंड करने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम। तो सर हम तो यही कहते हैं डायरेक्ट प्रमोट करें। जी तो सर हम तो यही कह रहे हैं ना सर कि बस डायरेक्ट नंबर दे के प्रमोट करें। सो नंबर में भी फिर आप कंफ्यूज होंगे कि एक स्टूडेंट को 80 क्यों मिले, दूसरे को 70 क्यों और मिले। सर प्रीवियस के रिजल्ट पर दे ना, जिसकी प्रीवियस जीपीए जितनी आई है उसके बेस पर दे, प्रमोशन दे सर। नहीं, ये एक स्टूडेंट कहेगा कि मेरे प्रीवियस जो रिजल्ट हैं वो बुरा था, अब इस सेमेस्टर में मैंने काफी पढ़ा है। सर फर्स्ट तो इंटरमीडिएट वाले क्या कहेंगे? उनके साथ भी तो ऐसे किया है ना सर। असल में इंटरमीडिएट में स्टूडेंट जो होते हैं उसका थोड़ा सा चले, ये असल में क्लास के बाद में एक्सप्लेन कर लूँगा, ठीक है जी। ओके सर। हाँ हाँ। सो डिफ्लेक्शन ऑफ ए बीम, दिस इज लास्ट टॉपिक, और 2-3 पेजेस का है बस, 4-5 पेजेस का है डिफ्लेक्शन ऑफ ए बीम। अब चलिए मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर लूँ पहले। डिफ्लेक्शन ऑफ ए बीम, आपके पास बीम 3 टाइप्स के होती हैं जो जो जनरली होते हैं। these are of 3 types. So one is this one कि एक दो फिक्स पॉइंट्स के साथ उसको अटैच किया जाता है। दिस इज वन टाइप ऑफ बीम, ठीक है जी। दिस इज वन बीम। और सेकंड इज
आप एक फिक्स पॉइंट के साथ अटैच करें एंड दूसरा जो है सपोज किसी जमीन पे है, दिस इज सेकंड टाइप, दिस इज फर्स्ट टाइप, दिस इज सेकंड टाइप, एंड मे बी आप उसको किसी दो सपोर्ट्स के ऊपर इस बीम को रख ले, दिस इज थर्ड केस। ठीक है जी, ये बीम डिफरेंट टाइप्स के हो सकती हैं इस तरह। ये क्लियर हुआ? यस सर। अच्छा जी, अब देखें इस बीम पे जितना आप लोड अप्लाई करेंगे, जितना लोड अप्लाई करेंगे उतना ये बीम जो है इसमें ये करोट फॉर्म में बनता जाएगा। ठीक है जी, जितना लोड अप्लाई करेंगे उतना ये करोट फॉर्म में चला जाएगा। ये क्लियर हुआ? यस सर। अच्छा जी, लोड को हम WX कहते हैं। सपोज लोड इज ए फंक्शन, दिस इज ए वेरिएबल फंक्शन, WX इज ए वेरिएबल, क्योंकि अगर पुल पे से गाड़ी गुजर रही है तो कभी वो उसका वेट कुछ और होगा, कभी कुछ और होगा, कभी एक सिरे पे कुछ और होगा, कभी दूसरे सिरे पे कुछ और होगा, कभी सेंटर पे कुछ और होगा, कभी। सो लोड इज वेरिएबल ऑन द पुल। ये क्लियर हुआ? यस सर। अच्छा जी, so W is a function of X. X means length. X means length. So W is distributed variably over the length. So ये constant भी हो सकता है। अगर हर पॉइंट पे equal load distribute हो जाए, so this omega X will become some omega naught, suppose. Now this omega naught is constant value. So ये भी possibility है। If the question is, if the load is equally distributed on a beam, so what will be the situation? So omega x may be variable, omega x may be constant. ये वो चीजें क्लियर हुई? क्लियर है। अच्छा जी, अब इस पॉइंट को थोड़ा सा नोट करें, इस पॉइंट को नोट करें। जितना इस पे वेट ज्यादा होगा, जितना इस पे वेट ज्यादा होगा, इसका मोमेंट जो होगा, मोमेंट डी स्क्वायर m by dx square will be equal to omega x। ये नहीं होगा इक्वेशन। एम क्या रिप्रेजेंट करता है सर? m जो है मोमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस बीम के मोमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो ये लोड के लिहाज से जितना लोड ज्यादा होगा उतना उसमें मोमेंट ज्यादा होगा ना? यस सर। अच्छा जी, एक्सेलरेशन, मोमेंट का एक्सेलरेशन ज्यादा होगा। क्लियर हुआ? क्लियर है सर। So this is the differential equation for a beam when there is a load and when there is a variable load on this. So this is d square m by dx square is equal to wx. Now what is m? M is actually proportional to the curvature of the curve. जितना कर्व ज्यादा होगा, ठीक है जी, m जो है, ये m जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस चीज का? कर्वेचर का। जितना उसमें कर्वेचर ज्यादा होगा उतना उसमें से m भी ज्यादा होगा। m means moment. m is directly proportional to the curvature. Curvature means कि इस बीम में जितना ये कर्व्ड होगा उतना उसमें मोमेंट ज्यादा होगा। ये क्लियर है ना? यस सर। अच्छा जी, इसमें से m जो है, m इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो है, दिस इज EI आर कांस्टेंट्स, this depend on the material, and this is K. So if you put this value of m here, so this will become EI d square K divided by dx square is equal to what? This is equal to omega x.
So it will become this one. सर ये इलास्टिसिटी और आई क्या है सर? आई और के जो है वो उसका कर्वेचर है, करो का। थोड़ा सा मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ, फिर वापस इसी पे आते हैं। अब देखें, अगर मुझे आप ये बता दें कि k की वैल्यू क्या होगी। k इज एक्चुअली approximately equal to y double dash। k is actually equal to y double dash। ये क्यों? कर्वेचर। आपने कभी ये पढ़ा है कैलकुलस में कि if this is a straight line, तो इस पॉइंट पे टेंजेंट का डायरेक्शन क्या होगा? इस पॉइंट पे टेंजेंट का डायरेक्शन क्या होगा? कौन बता सकता है? along x-axis। along x-axis। इस पॉइंट पे टेंजेंट का डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में होगा ना। इस पॉइंट पे टेंजेंट का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगा, इस पॉइंट पे टेंजेंट का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगा, and at this point the tangent direction is this point। Is it clear? So tangent means dy by dx। This is tangent, this is slope। So if you are moving on a straight line, so there is no change in your tangent direction। If you are moving on a straight line, there is no change in your direction। Direction means dy by dx। Direction means tangent। Direction of motion means tangent। Note करें। And change in direction means double derivative। So this must be zero when you are moving on a straight line। देखें, what is tangent? Tangent is dy by dx। Is it clear? Yes sir। Change in tangent is the double derivative, is again the derivative of tangent। This means tangent, this means change in tangent। Change in tangent is equal to zero if you are moving in a straight line। This is tangent, this is change in tangent direction। So change in tangent is zero when you are moving on a straight line। Clear हुआ? Yes sir। So it means double derivative is zero। So double derivative zero means इसमें इस straight line में चूंकि bending नहीं है, there is no bend in the straight line, so therefore the double derivative is zero। Double derivative means curvature। So if the double derivative is zero, so it means its curvature is zero। Curvature means bending, and bending is always represented by double derivative। So अगर किसी करो के कर्वेचर को चेक करना है, so you check its double derivative। Suppose ये देखिए, if you are moving on this path, this is your path, this one, so इसका डेरिवेटिव इंक्रीज हो रहा है। Yes sir। डेरिवेटिव इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीज हो रहे हैं? अगर राइट साइड पे जाए तो इंक्रीज हो रहा है जी। इसका स्लोप कितना है? इस पॉइंट पे आपका डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट ये होगा ना, तो इसका एंगल कितना है? इतना है। डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट की बात कर रहा हूं। इस पॉइंट पे कितना होगा? इतना होगा। इस पॉइंट पे इतना होगा। सो आपका एंगल चेंज हो रहा है ना, कम हो रहा है। आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे आप मूव कर रहे हैं ऊपर की तरफ, आपके डायरेक्शन का एंगल डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है ना। यस सर। अच्छा, जो भी हो रहा है मींस चेंज हो रहा है। सो दिस मींस टेंजेंट, एंड जैसे एक पॉइंट से ये दूसरे पॉइंट पे चलता है तो टेंजेंट चेंज हो रहा है। टेंजेंट चेंज का मतलब डबल डेरिवेटिव।
टेंजेंट चेंज का मतलब डबल डेरिवेटिव। टेंजेंट इज वन डेरिवेटिव, चेंज इज अनदर डेरिवेटिव। बात समझ में आ रही है? यस सर। अच्छा जी, तो यहां पे डबल डेरिवेटिव क्या होगा, पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा? अगर 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 ये डिक्रीज हो रहे हैं तो डबल डेरिवेटिव क्या होगा? चलिए मुझे एक और बात बता दे, डबल डेरिवेटिव को मैं सिंगल डेरिवेटिव को कैसे रिप्रेजेंट करता हूं, y डैश को। चलिए ये बता दे, इसको मैं y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 रिप्लेस कर सकता हूं, कर सकते हैं ना? यस सर, स्लोप का प्रमेय। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं डबल डेरिवेटिव को, तो लिख सकते हैं इसको यस सर। x2 माइनस x1 ऐसे होगा ना। अच्छा ये देखें, y2 क्या है, इस पॉइंट पे ये आपका x1 बना और ये पॉइंट आपका x2 बना। सो x2 का डेरिवेटिव, x2 पे स्लोप ज्यादा है या x1 पे? x1 पे। x1 पे। सो x1 की वैल्यू तो, x1 पे स्लोप की वैल्यू तो ये है, x2 पे स्लोप की वैल्यू ये है। सो ऊपर वाली वैल्यू नेगेटिव वैल्यू आएगी या पॉजिटिव? नेगेटिव। सो टोटल वैल्यू नेगेटिव। सो डबल डेरिवेटिव जब नेगेटिव होगा तो ये ग्राफ जो है कनकेव डाउन होगा, इसको कनकेव डाउन कहते हैं, ये पढ़ा होगा आपने। यस सर। यस सर। सो आपको कनकेविटी, डबल डेरिवेटिव आपको कनकेविटी देता है, डबल डेरिवेटिव आपको उसका बेंड देता है कि वो नीचे की तरफ है ऊपर की तरफ है, उसकी वैल्यू के मुताबिक आपने डिसाइड करना है। सो कर्वेचर इज एक्चुअली रिप्रेजेंटेड बाय डबल डेरिवेटिव। सो if you replace this m by k और k by double derivative, so already m पे double derivative पहले से मौजूद हैं, so अगर m को double derivative में replace करें, so this become 4 derivative, so the resulting differential equation will become d power 4 by dx4 is equal to wx। तो इक्वेशन 4 तक तो मेरे ख्याल में क्लियर हो चुका होगा, ये क्लियर हुआ? अब ये इक्वेशन 4 जो है ये आपका होमोजीनियस है या नॉन होमोजीनियस है, ये आप मुझे बता दें। नॉन होमोजेनियस। नॉन होमोजीनियस। इसका YC क्या होगा, कौन बता सकता है? M4 इज इक्वल टू 0 नहीं होगा, M4 इज इक्वल टू 0। यस सर, M4 इक्वल टू 0। तो M इज इक्वल टू 0 0 0 0, 4 zeros होंगे। तो YC कौन बता सकता है? YC ये नहीं होगा, C1 प्लस C2x प्लस C2x स्क्वायर एंड C4x क्यूब, ये होगा YC। जी सर। अच्छा, अब मुझे YP बता दे, YP क्या होगा? इस क्वेश्चन में आपका YP क्या होगा? ये एक एग्जाम्पल है, ठीक है जी। एग्जाम्पल में ये कह रहे हैं कि अगर ओमेगा एक्स ओमेगा नॉट हो, ओमेगा एक्स मीन्स कि इफ द वेट इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली along its length, so WX W नॉट बन जाएगा ना। यस सर। अच्छा जी, तो YC ये बना, आपका YP क्या होगा मुझे आप बता दे। अगर ओमेगा एक्स आपका ओमेगा नॉट है तो YP का सिलेक्शन कैसे करें अगर हम अनडिटरमिनेट कोएफिशिएंट मेथड यूज करें? ये कौन बता सकता है? ओमेगा नॉट राइट साइड पे अगर है, अगर ओमेगा नॉट राइट साइड पर है, ओमेगा नॉट इज ए कांस्टेंट वैल्यू, सो अगर मैं अनडिटरमिनेट कोएफिशिएंट मेथड यूज करूं तो YP का सिलेक्शन कौन बता सकता है? AX plus B। नहीं, only A, because omega naught is a constant value। Yes sir।
अगर वाई पी आपका ए है तो ए तो वाई सी में मौजूद नहीं है इन द फॉर्म ऑफ C1। जी है सर ना? मौजूद है इन द फॉर्म। एक्स मल्टीप्लाई अगर जी तो x मल्टीप्लाई करे लेकिन फिर भी मौजूद हैं तो अगेन एक और x मल्टीप्लाई करे, सो लास्ट आपका वाई पी क्या होगा, ए एक्स पावर 4 नहीं होगा। यस सर। अच्छा जी, तो ए एक्स पावर 4 को 4 दफा डिफरेंशिएट करे और इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करे, यू विल गेट ए वैल्यू इज ओमेगा नॉट 24 ई आई, वाई पी में वापस पुट करें। सिंपल कैलकुलेशन है, कर लेंगे ना। ये तो बाकी क्वेश्चन से सिंपल हैं, लेकिन जब आप उस सेंस में उसको देखेंगे कि वाई पी क्या सेलेक्ट करे, फिर वाई पी जब सेलेक्ट हो जाए उसको अपडेट करे, अपडेट करने के बाद उसको 4 दफा डिफरेंशिएट करे, इसी क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करे, यू विल गेट अननोन कांस्टेंट, जिस तरह हम पहले करते थे। क्लियर हुआ? यस सर। अच्छा जी, अब मुझे आप बता दें, आपके वाई पी और वाई सी जब ऐड करेंगे तो उसमें टोटल सॉल्यूशन में कितने कांस्टेंट इन्वॉल्व होंगे? 4 होंगे ना? यस सर। जी उन जी चार C1 कांस्टेंट को कैसे फाइंड करें? उन 4 कांस्टेंट को कैसे फाइंड करें? उसके लिए ये कंडीशन गिवन है, ये बाउंड्री कंडीशंस है। क्यों? अगर बीम अटैच्ड हैं दोनों एंड्स पे तो उसका डिस्प्लेसमेंट जो होगा, वाई डिस्प्लेसमेंट को हम कहते हैं, तो वो दोनों एंड्स तो डिस्प्लेस नहीं होंगे ना, वहां तो फिक्स हैं वो। जी जी सर, ऊपर वाला फिक्स है तो नीचे डिस्प्लेस होगा, ठीक है। हाँ, तो जीरो पे मींस लेंथ जीरो पे, अगर इसका ये आपका बीम है, अगर ये आपका बीम है, यहाँ पे फिक्स है, यहाँ पे भी फिक्स है, ये आपका एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो है, और मतलब y इज इक्वल टू जीरो है, और यहाँ पे y इज इक्वल टू एल है यहाँ पे, सो y इज इक्वल टू जीरो पे और l पे y की वैल्यू जीरो होगी, देयर विल बी नो डिस्प्लेसमेंट। अगर ये डिस्प्लेस होगा भी तो a से डिस्प्लेस होगा, a से, ये इस फिक्स पॉइंट्स के नजदीक नजदीक ये डिस्प्लेस नहीं होगा, ऐसे होगा ना। यस सर। अच्छा जी, सो बहरहाल इसकी वेलोसिटी भी नहीं होगी, अगर वो डिस्प्लेस नहीं हो रहा तो वेलोसिटी भी नहीं होगी। तो ये 4 कंडीशन आप यूज करें, यू विल गेट C1 C2 C3 C4 एंड दिस इज द सॉल्यूशन। और ये उसका ग्राफ है, देखें। सो ग्राफ शोज दैट एज यू आर मूविंग अवे फ्रॉम फिक्स पॉइंट, so the beam deflection increases, and at the center its deflection is maximum as compared to the other positions. ठीक है जी। So it depends on length. If you increase the length from 0 to 1, that is from now it becomes suppose 0 to 2. So यहाँ पे जो bend है वो increase हो जाएगा। If you increase more the length of beam, suppose this is 0 to 3, 0 to 4, 0 to 10. So at the center, its vibration and its amplitude and its bending will increase more and more. Clear हुआ? यस सर। Okay जी, so this is your class. आप इसको देख लें।